Children, here we are for the new session. Alright, it is session number 11, chapter 14, statistics. So far, we learned what is data, correct? Yes. How to convert ungrouped data into group data. That is how to prepare frequency distribution table. And then, if we have frequency distribution table, we learn how to represent it in the form of diagram. What are those diagrams called? Graphs. Those diagrams are called graphs. And we learned 3 types of graphs. Actually, bar graph, that was revision. Then, histogram and frequency polygon. I hope you know them all to draw. Yes. In polygon, on x-axis we have to take class mark. Be careful. Alright, you have to take class mark. That's it. So we proceed to the next concept of the chapter, and it's called measures of central tendency. Measures of central tendency. In the previous session, during the concluding part, I told you what are measures of central tendency. Actually, it is a tool. It's a tool. With the help of tool, you repair something. With the help of tool, yes, you can know how much fat is in the milk. With the help of tool, you can measure your height. With the help of tool, you can measure your weight. है ना? Different tools helps you to measure. Like that, measures of central tendency. There are few tools which help us to measure something from the data. As for example, marks obtained by students in a particular class is given. From that data, may be grouped or ungrouped, you can tell how the class is, how the students of the class are. Whether it is average class, whether it is brilliant class, or whether it is below average class. But what are those tools? किस चीज का कैलकुलेशन करोगे जिससे पता चलेगा? जो चीज हमारे पास है, जो टूल्स है, उसको कहते हैं measures of central. And in this class, standard 9, we are going to learn 3. And we are going to find, okay, which are those 3? Let me tell you. Mean, median, and mode. Very interestingly, median, the symbol is taken as x bar. Not median, but mean. For mean, the symbol is taken x bar. For median, the symbol taken is m. You know m say actually, mean, median and mode. So all cannot be m. And this, it's taken z. Mode is taken z. So these 3 tools we are going to use to judge the data, to judge the class if marks are given. Alright? We'll see, children. Let's see. We'll take example and try to understand. अभी मैं कुछ भी ज़्यादा बोलूं, उससे mean, median, mode समझ में आने वाला नहीं. Alright? We'll take example and try to understand. Then you will understand the difference between mean, median and mode. So after, yes, doing certain examples, we'll come back to the difference between mean, median and mode. The utility of mean, median and mode. उसके बारे में और discussion करेंगे. So first we'll see, for screenshot, the 3 measures of central tendency that we are going to learn are mean, median and mode. I'll take first example. Okay. I'll put observe and understand. Observe and understand. Check. First,
the marks, that is out of 50 secured by 20 students of a class is given below. Find their mean marks. Find their mean marks. What you are supposed to find? Mean marks. Mean. What you are supposed to find? Mean marks. Children, in the lower class, you have learned average. पता है? My weight is 74 kg. Yes. What's your name? Marvin. Marvin. Marvin's weight is 41 kg. Yes, your name? This is Prakash sir. This is Marvin and this is Dhyay. Yes, Dhyay? 40 kg. ठीक है? उसका 40 kg. तो total weight 5 and 15. 155 kg. But if I take average weight, so that total weight divided by 3 persons. 3 5s are 50, 3 1s are 3, 2 बचेगा 0.0, 3 6s are 3 6 are. So it is approx 6 मिलते रहेंगे. So approximately 51.67 kg. इसको कहते हैं average weight. Average weight of Prakash, Marvin and Dhyay. What is the average weight of Prakash, Marvin and Dhyay? 51.67 kg. Are you getting me? Yes. So ये average word it was used in arithmetic. Same average हम statistics में कहते हैं mean. So mean is nothing but average. All right. So here I'm going to give you that data marks obtained. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Here are the marks scored by 20 students. Is this information, this written information, is it organized or not organized? Not organized. So it is ungrouped data. ये data कौन सा है? Manthan, you are not attentive. The boy next to him also is not attentive. Pay attention here. This is ungrouped data. Okay, and our aim is to find mean. Children, इसको कहते हैं observation. This is called observation. Observation symbol is X. पहले को कहेंगे X1, दूसरे को कहेंगे X2. तो ये लास्ट वन क्या आएगा? X. वेरी गुड. हमें सबका सम करना है. Sum of observation. Sum of observation. Just try to understand. Sum of observation. X1 plus X2 plus X3 plus dot X. You understand? Okay. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है. Mathematician used a trick to express this briefly. कैसे? ये प्लस 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 है ना, many times प्लस के लिए उन्होंने एक सिंबल लिया which is called सिग्मा. इसको क्या कहते हैं? सिग्मा. और सिग्मा किसका एडिशन है? x का. xi, sigma x, and I runs from 1 to 20. ये sum of observation symbolically if you want to write sigma xi where I runs from 1 to 20. समझ में आई बात? I runs from 1 to 20. And what is the number of observations here? Number of observations 20. Number of observation is 20. और उसको सिंबॉलिकली कहा गया है n. Number of observation को क्या कहा गया है? n for number of observations, and that is 20. And that is 20.
अब टोटल ढूंढना हो तो ढूंढो, और क्या। बोलो, ये 9 टोटल होगा। 9 + 24 33, 36 46 46 54 और 74 79 109 112 152 152 और 2 154 154 में 10 ऐड करो 164 में पहले 8 ऐड करो 164 में 8 172 में 40 ऐड करो 212 5 ऐड करो 270 10 ऐड करो 227 27 में 227 में 3 ऐड करो 233 10 ऐड करो 243 में 30 ऐड करो 273 में 5 ऐड करो 278 उसमें 40 ऐड करो 418 18 और 8 16 18 और 8 26 और 10 36 हुआ 436 36 plus 30 66 plus 9 75 plus 14 40 75 plus 15 but 515 15 में 20 35 535 plus 6 41 और 40 81 500 this is 581 ओके कितना है टोटल वो टोटल हमने कर लिया है। अब लिखने का कैसा, हाउ डू यू राइट, आपको सिंबॉलिकली ये लिखना है। ऑलराइट, सॉल्यूशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट में लिखूंगा सिग्मा दैट इज इक्वल टू 580 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट में लिखूंगा दैट इज इक्वल टू नाउ बोलो मीन ढूंढना है। मीन सिंबल क्या है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ अपॉन नंबर ऑफ बोलो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 20 को हम 100 बना सकते हैं आराम से। 20 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 100 So I multiply denominator by 5 and numerator also by 5. So what I am getting? 581 5 ones are 5, 5 is 40, 4 is carried over, 5 is 25, 4, 29. Upon 25 is 100. अरे आराम से 100, आराम से पॉइंट रख लो 29.05. This is x bar लिख दो, मीनी तो है। X bar is so many marks. बोलो ये क्लास अच्छा है या अच्छा नहीं है? 50 मार्क्स टेस्ट है ना, सो 25 से ज्यादा है एवरेज हर एक का 25 से ऊपर है। सो दिस क्लास इज गुड, दिस क्लास इज गुड। ऑलराइट, विल सी द नेक्स्ट। Alright, so children, this is now second data. It's different. Yeah, here also marks out of 50. Again 20 Students. Again find the mean. But this is another group of 20 students, not the previous one. In the previous one, we got mean is equal to 29.05 marks. ये मिला था ना? Yes. और 50 marks की टेस्ट है और उसके आधे है 25, तो ये हर एक स्टूडेंट्स का 25 के ऊपर मार्क्स है। सो यू कैन से दैट क्लास या दैट ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट इज गुड वन, अच्छे हैं बच्चे। ऑलराइट, चलिए यहां देखते हैं। यस, 20 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 46 28 12 14 and so 44 and so on. We'll once again have to find the mean. Alright, solution
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हैं सिग्मा आई रन फ्रॉम 1 to 20, वो लिखने की जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज n. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज प्लीज. इस बार हम टोटल इस तरीके से करेंगे. 46, 28, 12, 44, 25. ओके, 5. ये 10, ये 14, ये 43, ये 22, ये 30. फिर 13, 43, 13 आ गया ना, so 43 से 13, 41, 30 और 31, 36, 34, 33, 30 और 8. All right. 9, 19, 25 to 8, 9, 13 और 15, ये 5, 8 और 12, 1, 3, 7, 9 और 10, 6 और 8, 9, 12, 15, 10, 18, 21, 2, 12 and 14, और ये सारे एडिशन ना. 155, 102, 158, 141, 10, 16, 1, 11, 15, 1, 556. 556. So what is sigma xi? 556. Number of observation? 20. And what is the formula to find the mean? Now I am going to write symbolically now. मेरा काम थोड़ा आसान कर रहा हूँ. What is mean? That is equal to sum of observation sigma xi upon number of observation. समझ में आया ना अभी? Yes. What is sum of observation? 556. Number of observation? 20. Once again we are going to use the same trick. Multiplied by 5. and divide by 5. So that gives me 5 6 are 30, 3, 25, 28, 2 and 20. 27, ne? Yes. 27 upon 100. this is 0 0. Yeah, 27. Take 0 cancel कर दो, so 27.8 marks. So this is mean x bar. This is mean x bar. So what is the mean marks obtained by this second group of students? 27.8. Can you say the group is good? Yes. You can say the group is good because it is more than 25. There are all 20 students on an average are scoring more than 50% marks. 25 marks आधे मतलब 50%. ये 25 से ज्यादा है. So here you can interpret that this class or this group of student is Good. Actually it is not. This group is not. So ये जो मीन है ना हमें गलत बता रहा है. It leads us to a wrong conclusion. क्यों? मैं अभी बताता हूं. Alright? अब हम इसी डेटा का मीडियन ढूंढेंगे. क्या ढूंढेंगे? Median. इसी डेटा का मीडियन ढूंढेंगे. अच्छा, when you want to find median, अब क्या करोगे? ये जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. दिस वन. इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. तो पहले असेंडिंग ऑर्डर. All the observations are needed to be arranged in ascending order. सबसे छोटा 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 भी है. 13 एक नहीं दो बार है. So 13 14 का है यहाँ. फिर 14 के बाद 20 है. 22 ये है. 22 उसके बाद 25 28 लिखा है. So I'll write quickly. 30 31 33 34 36 41 43
43, 44 और 46। ठीक है, 43, 43 दो बार है ना? यस। एक बार गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 दो बार है। ओके, सो आई एम पुटिंग 30 है, दो बार है 30। ओके, चलिए, दैट्स फाइन। देखा, कंफर्मेशन में आ गया। एक हमने मिस आउट किया था, सो नाउ इट्स कंफर्म। ऑलराइट, असेंडिंग ऑर्डर किया ना, अब हम क्या करेंगे? मीडियन ढूंढेंगे। वो कैसे, जरा समझिए। पहली जिसमें हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। पहले से एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, पीछे से भी निकालो, आगे से निकालो, पीछे से निकालो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। माय गॉड, माय गॉड, ये तो दो बच गए। आगे पीछे निकलेंगे, दोनों निकल जाएंगे। तो जब ऐसे दो बच जाते हैं तो उसका टोटल करते हैं 30 + 30 डिवाइड बाय 2, 60 बाय 2, and that is 30। बोलिए, ये क्लास अच्छा है? अच्छा है, क्योंकि मीडियन क्या आया? मीडियन क्या आया? 30। उसका मतलब कि आधे स्टूडेंट्स के मार्क्स, आधे, हाफ स्टूडेंट्स गॉट less than 30, less than 30, and the other half students got more than 30. तो अच्छी बात है ना? More than half students are scoring 30 marks. That means 60% marks. 50 में से 30 तो 100 में से 60. So फर्स्ट क्लास मार्क्स वाले आधे स्टूडेंट थे। So मैंने जो कहा वो गलत है। ये सही में अच्छा ग्रुप है, ये सही में अच्छा ग्रुप है। मीन जो दिखा रहा था 27, देखो उसका मीन छोटा है पहले वाले से। आई हैव टू फाइंड आउट मीडियन फॉर दैट फर्स्ट ग्रुप एज वेल। आई हैव गॉट इन असेंडिंग ऑर्डर, मैं वो लिख देता। जरा समझिए चिल्ड्रन, ओके? वी आर कंपेयरिंग मीन, मीडियन एंड मोड। वो कंपैरिजन हम देख रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं मीन, मीडियन और मोड क्या है एग्जैक्टली, वो समझ रहे हैं। ऑलराइट, यहां मीन और मीडियन दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं कि ग्रुप नंबर 2 अच्छा है। एवरेज कितना आया? 27.8 आया था ना? सो 50% से ज्यादा मार्क्स एवरेज आता है, एवरेज, ओके, सबका। और मीडियन ढूंढेंगे तो 30 आया। तो उसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? हाफ मतलब 50%। 50% ऑफ द स्टूडेंट आउट ऑफ 20 में से 10 स्टूडेंट का मार्क्स 30 से बिलो है और 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स 30 से अब 20 में से 10 स्टूडेंट्स 30 के अबव मार्क्स हो तो वो ग्रुप अच्छा है। आर यू गेटिंग मी? यस। अब मैं वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले वाला ग्रुप जो फर्स्ट था ना, उसके मार्क्स लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर मेरे पास है 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 43, 45, 46, 48, 49। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सही है ना? 20। चिल्ड्रन, आपको याद है इसका मीन क्या आया था? एक्स बार 29.05 ऊपर लिखा है, यस, 29.05, ओके। और इसका क्या आया मीन? 27.8, राइट, इसका मीन। अब मीन को दोनों और डेटा के मीन को हम कंपेयर करेंगे तो कहेंगे ये ग्रुप 1 है ना, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। तो
ये मीन दिखा रहा है कि ग्रुप 1 अच्छा है क्योंकि उसका मीन ज्यादा है। 27.8 से 29.05 बेहतर है, एवरेज मार्क्स ज्यादा है। सो ग्रुप 1 इज बेटर देन ग्रुप 2। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब देखो यहाँ मीडियन, इसका मीडियन क्या था? मीडियन इसका 30। अब इसका मीडियन क्या आता है? देखो फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, फिफ्थ, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। भाई 2 बच गए, वो दोनों को नहीं निकाल दे। 20 + 24 डिवाइड बाय दैट इज 44/2 एंड दैट इज। तो इसका मीडियन क्या हुआ? अभी देखो इसका मीडियन बेहतर है। दिस डेटा टेल्स, ये जो इंफॉर्मेशन है कहती है कि सेकंड ग्रुप में 10 बच्चे, 20 बच्चे है ना, तो आधे मतलब 10 बच्चे का मार्क्स 30 से ऊपर है। यहाँ 10 बच्चे का मार्क्स 22 के ऊपर है। ये तो 30 के ऊपर वाले 10 बच्चे, ये तो सिर्फ 22। तो कुछ बच्चे का 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, तो ये तो सीधा 30 से ऊपर जाने वाले 10 बच्चे। सो ग्रुप 2 इज बेटर। ऑलराइट। और मीन देखेंगे तो बोलेंगे ग्रुप 1 इज बेटर। એટલે क्या मीन શોધવાનું, क्या मीडियन શોધવાનું, એ તો તમે એક્સપર્ટ સર્વેયર બનશો અને આ ટૂલને યુઝ કરો ત્યારે। આપણે તો કઈ કરવાનું નથી, वी डोंट हैव टू डू मच इन द एग्जाम। डेटा दिया होगा, फाइंड द मीन, डेटा दिया होगा, फाइंड द मीडियन, या आपको सिर्फ मीन मीडियन और मोड दिया होगा, उसके बारे में क्या करना है वो नहीं दिया है, कंपेयर करना है विच इज बेटर एंड ऑल दैट। और वो भी क्वेश्चन होंगे तो दे विल बी वेरी सिंपल। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है, उसको समझ रहे हैं। ऑलराइट। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैं आखिर में बोलूंगा आपको। अभी एक और ढूंढना है, एक और ढूंढना है मोड। ऑलराइट, लेट्स सी। तो कुछ डेटा का इंटरप्रिटेशन के लिए मीन अच्छा है, तो किसी का मीडियन अच्छा है और किसी का मोड। तो मीन मीडियन, ओ चिल्ड्रन मैंने बड़ी गलती कर दी। नहीं, फॉर्मूला उसकी बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। फॉर्मूला हाउ टू डिराइव, हमने मीन की फॉर्मूला देखी लेकिन मीडियन की नहीं देखी, वो मैं बाद में बताता हूं। चलो बाद में बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो मीन मीडियन और मोड। दिस इज थर्ड वन, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। द फुटवेयर number of footwear sold in a shop is 20 footwears sold in a shop is given below। बच्चा तेरा फुटवेयर नंबर कौन सा है? 6 होगा, 6। तेरा 6। ओ लंबे वाली जिराफ बोलो ना, देखो बहुत लंबे पैर है और मेरे से भी लंबी है। ऑलराइट, सो फुटवेयर नंबर इज 9। सो वो इंफॉर्मेशन है यहाँ, प्लीज। मेरा 7 है। द फुटवेयर नंबर ऑफ 20 फुटवेयर सोल्ड इन अ शॉप इज गिवन बिलो। एक शॉप में 20 फुटवेयर जो बेचे गए, कौन से नंबर वाले बेचे गए वो यहां इंफॉर्मेशन है। तो एक 9, 7, 6, 7, ओके, 10, 7, 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, और 6, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8, किसी ने 11 बोला और एक 5 डाल दें, 2 5 डाल दें। अच्छा, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये नंबर्स क्या है? इट्स द फुटवेयर नंबर। ओके, अब इसका मीन ढूंढ ले हम लोग।
पहले क्या ढूंढे? मीन। चलिए, तो 16, 22, 29, 39, 46, 53, 60, 68, 74, 79, 80, 90, 98, 105, 12, 16, 23, 30, 36, 41, 140, ठीक है। टोटल डिवाइड बाय 20, हाँ वही करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5, 20 और 7, अब 100, so 7.05. What is the mean? What is the mean? 7.05. मीडियन। ओ बाप रे, मीडियन में तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है ना। चलिए, सबसे छोटा 5 और 2 है, फिर 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7 तो बहुत सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर 8 कितने हैं? 9 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक मिस आउट क्या है? 10 है और 11 हो गया, हो गया। चिल्ड्रन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ? n इज इक्वल टू 20 और इवन है ना, इवन है, ऑलराइट। कौन सा है? तो उसका आधा कर दो, n/2th ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। भाई 20th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 11। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 11th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो n/2th मतलब 20/2, दैट मीन्स 10th ऑब्जर्वेशन। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, 20th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, दैट इज 10th ऑब्जर्वेशन। सो विच इज द 10th ऑब्जर्वेशन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये वाला 10। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, उसका दोनों का टोटल करो, डिवाइड बाय 14/2 एंड दैट इज 7। तो ये फॉर्मूला बनती है n/12th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1। भाई आप 10 આવ્યો તો 10 પછી +1 કર્યો કે નહીં? n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, दैट विल गिव मी मीडियन, दैट विल गिव मी। सो फॉर्मूला ऐसे बनती है, विल सी। दो फॉर्मूला है चल रहा है, इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग। अब देखते हैं, देखो यहां से कट किया, यहां से कट किया, कट कर रहा हूं इसका। अच्छा, ओके, आ गया। दोनों नहीं कट कर सकते, नंबर ही गायब हो जाएगी, इसलिए ये बच गए। वही आएगा, देख लीजिए आप, जस्ट सी दैट सेम n/2th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, n/2 ने ये लोग को શું કહે? pth ऑब्जर्वेशन, p where p is equal to n/2 એટલે આ સરસ p plus 1th ऑब्जर्वेशन। આ 7 આવ્યું તો આ 8, આ 11 આવ્યું તો આ 12, એના કરતા એક વધારે ને। આ p 100 આવ્યો તો આ 101, આ p 19 આવ્યો તો આ p plus 1 20। પણ p એટલે શું? જે નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન હોય ડિવાઇડ બાય, પણ આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે p વાળી? ऑड में પછી फॉर्मूला बदलाई है। चलिए, सो ये दोनों का एवरेज वही तो हुई, फॉर्मूला से किया वही सेम थिंग 7। सो व्हाट इज द मीडियन? भाई मीडियन क्या आया? 7। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मोर, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मोर। ऑलराइट, सुनिए, 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है, लार्जेस्ट वैल्यू 11 है। 5 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। 6 कितनी बार? 7 कितनी बार? 9। 8 कितनी बार? 9 कितनी बार? 10 कितनी बार? और 11 कितनी बार? 1। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया वो कौन सा है? 9 मैक्सिमम है, and that is 7।
वही है अपना मोड. द मोड ऑफ द डेटा इज, यहाँ तो मीन, मीडियन और मोड 7 ही आया. अच्छी बात. ये मोड का फायदा क्या है? अभी सुनो. दिस फुटवेयर शॉपकीपर, मालिक को फुटवेयर का ऑर्डर करना है. कितना शूज ऑर्डर करना है? 20. नहीं, सिर्फ 20 होता है फुटवेयर शॉप में. सब बिक जाता है तो मंगाता है ना. सपोज उसको 1000 फुटवेयर का पैर लाना है, तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर वाला लाएगा? वो ज्यादा बिकता है. तो ये 1000 में से 500 तो 7 नंबर वाले ही वो मंगाएगा. फिर 6 नंबर वाला 200, अरे 300, फिर एक्सक्यूज मी 7, एक मिनट, 5 नंबर वाले 2, तो वो 100 मंगा दिया. 6 नंबर वाले 4, तो वो 200 मंगा दिया. 7 नंबर वाले कितने? 9, ज्यादा है, तो 7 नंबर वाले उन्होंने 500 मंगा दिया. यू अंडरस्टैंड? 8 नंबर वाले भी 2 है, तो वो क्या है? 100. चलिए 100, तो कितना हुआ? 900 हो गया. 9 नंबर वाले बहुत कम, एक ही, तो वो सिर्फ उसने 50 मंगाया. 10 नंबर वाला सिर्फ 25 और 11 नंबर वाला सिर्फ 25. चिल्ड्रन जो बहुत कम बिकते हैं ना, वो लाते भी नहीं. जब कोई कस्टमर आएगा वो बोलेगा मुझे 12 नंबर का शूज चाहिए, वो बोलेगा मुझे 2 दिन दे, 2 दिन दे दो, आई गेट फॉर यू. क्योंकि वो 12 नंबर का शूज आके वो उधर ही सड़ जाएगा. कभी कोई कस्टमर नहीं आया 2 साल 3 साल, फिर उसकी भी हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ मोड बहुत अच्छा है इस सिचुएशन में. आप मीन और मीडियन, यहां तो मीन मीडियन भी 7 ही आया, अच्छी बात है. यू अंडरस्टैंड? लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, दैट इज मोड. व्हाट इज मोड? द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये सारे ऑब्जर्वेशन है ना. द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, સૌથી વધારે વાર આવતો ઓબ્ઝર્વેશન, એને કહેવાય. So understood the concept? सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हम समझे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब यहां मैं एक काम करता हूं, एक ऑब्जर्वेशन कम कर दिया. सो 90 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? सो दिस विल बी ऑड, दिस विल बी ऑड. तो फॉर्मूला बदल जाएगा. मीडियन एम इज n प्लस 1 प्लस 1. जरा जो पहली पी वाली वैल्यू, एन वाली फॉर्मूला, पी वाली फॉर्मूला. बोलो एन क्या है? 90 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10. 10th ऑब्जर्वेशन गणी लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज योर मीडियन. दिस इज योर मीडियन. હવે સમજો બરાબર. બીજી રીતે આપણે સાદી રીતે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી મીડિયન શોધ્યું. આગળથી એક કાઢ્યો, પાછળથી એક કાઢ્યો. ઓકે. आगे से पीछे से, 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 आगे से पीछे से. अकेला रह गया. दैट इज योर मीडियन. दैट इज योर मीडियन. अकेला रह गया ना. जब 2 रहते तो उसका टोटल करके डिवाइड बाय 2 करना है. पहले 2 होंगे तो ये टर्म कौन सा है? पी टर्म. और ये कौन सा? उसके बाद वाला p प्लस 1 टर्म. वह p इज इक्वल टू n बाय 2. लेकिन यहां ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो व्हाट इज मीडियन? वो ऑड नंबर, n ऑड है, उसमें ऐड करोगे तो इवन हो जाएगा. सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. बी केयरफुल. ओके. सो व्हाट वी लर्न, और जो फॉर्मूला है वो मैं लिखने जा रहा हूं. सो नेक्स्ट टाइम विल सी हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड. सम्स देखेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे. Mean, the symbol is X bar. Median, the symbol is M. Or mode, the symbol is Z. Mean is equal to
sum of observations upon number of observations. Same thing if you write symbolically, x bar is sigma xi upon n, where I runs from 1 to n. पहला 1 है और लास्ट वन ये n, लेकिन we don't write that. i.e. हम ऐसे लिखेंगे x bar is equal to sigma xi upon n. I runs from 1 to n. राइटिंग इनकन्वीनियंस की वजह से हम नहीं लिखते, एक्चुअली वो आता है, राइट? सो अंडरस्टूड. अब लिखेंगे मीडियन. इफ n is equal to odd, if n is equal to median is equal to the value of n plus 1 by 2. ऑड में एक ऐड करो, even divide by 2 towards observation. The value of n plus 1 by 2 towards observation. अच्छा. And if n is equal to तो गड़बड़ वाली फॉर्मूला, median is equal to the value of pth observation, value of plus the value of p के बाद वाला p plus 1th observation, और फिर whole upon 2, where p is equal to n by 2. p n by 2 होता है. So these are the formulas to find median. odd number of terms होंगे या observations होंगे तो ये formula, even number of observations होंगे तो ये formula. और mode is what? The value of observation which occurs the most frequently. So using this 3 formula, we'll be finding mean, median, and there is the screenshot and you can copy later. All right. So children, that's all that we have in this session. During the next session, we'll see the sums. पहले मीन का ही देखेंगे, उसका खत्म करेंगे, फिर मीडियन, उसका खत्म करेंगे, और फिर once again I will be repeating the formula before we start solving the sums of mean. Okay? Goodbye. Have a nice day. Stay safe.